مسیح یسوع کے قابل نام میں آپ سب کو سلام۔ آئے ہم اپنی آنکھوں کو بند کرتے ہیں، اپنے سروں کو جھکاتے ہیں اور خدا یسوع کی حضوری میں آتے ہیں۔ ہالےلویا ہالےلویا۔ خدا میں تیرا شکر کرتا ہوں خدا کہ تو نے ہمیں ایک اور موقع بخشا کہ خدا ہم تیری حضوری میں آ سکیں میرے یسوع، ہم تیرے آگے اپنے سروں کو جھکا سکیں خدا، اپنے آگے خدا تیرے آگے خدا آ سکیں میرے یسوع۔ او میرے یسوع تیرے جیسا کوئی اور خدا ہے نہیں خدا۔ ہالےلویا۔ میں تیرا شکر کرتا ہوں کیونکہ تو رحیم ہے خدا، کیونکہ تو او خدا تو ہم پر رحم کرتا ہے خدا، تو ہمیں برکتیں دیتا ہے خدا۔ او ہالےلویا چیز، سب سے بڑھ کے تو ہمیں پیس دیتا ہے میرے یسوع۔ او ہالےلویا چیز، تیرے بغیر کوئی زندگی ہے نہیں، او تیرے بغیر خدا ہالےلویا۔ او میرے یسوع تو ہی ہمیں خالق ہے خدا، تو نے ہی ہمیں بنایا میرے یسوع۔ او ہالےلویا، میں تیرا شکر کرتا ہوں ہالےلویا چیزس۔ او میرے خدا ہالےلویا ہالےلویا، تو بادشاہوں کا بادشاہ، تو خدا بندوں کا خدا ہے ہالےلویا جیزس۔ او میرے یسوع تو جہاں پہ آتا ہے خدا ہالےلویا جیزس، تو سارے ماحول کو کنٹرول کر لیتا ہے خدا۔ میں آج سارے ٹیکنالوجی کو تیرے ہاتھ میں دیتا ہوں میرے یسوع، سارے سسٹمز کو تیرے ہاتھ میں دیتا ہوں میرے خدا ہالےلویا۔ میں تیرا شکر کرتا ہوں کہ تو خدا تو ہماری دعاؤں کو سنتا ہے، تو ایک زندہ خدا ہے ہالےلویا جیسس۔ خدا تو اپنے طالبوں کی دعاؤں پہ کان لگاتا ہے میرے یسوع ہالےلویا جیسس ہالےلویا جیسس۔ میرے یسوع ہالےلویا۔ آج خدا ہالےلویا میں سارے بہن بھائیوں کے لیے دعا کرتا ہوں خدا، جو آج ہمارے جوائن کریں گے لائف میں یا ریکارڈڈ سروسز میں، خدا ان کو بڑی برکت دے میرے یسوع۔ خدا اس سیزن کے اندر خدا ہالےلویا، جب ہم تیرے زمین پر آنے کو خدا مناتے ہیں میرے یسوع، ہم اپنی زندگیوں پہ خیال کریں کہ خدا کی تو کس وجہ سے اس دنیا میں آیا۔ ہالےلویا جیسس، ہمارے گناہ خدا ہماری کمزوریاں تجھے زمین پر لے کے آئیں خدا ہالےلویا۔ تو نے انسانی جامہ پہنا ہمارے لیے خدا، تاکہ خدا دیکھ خدا تاکہ تو ہمارے لیے صلیب پہ چڑھا خدا، تو ہمارے لیے اس دنیا میں آیا خدا، تو ہمارے لیے اس چرنی میں آیا۔ میرے یسوع میں تیرا شکر کرتا ہوں تیرے رحم کا، تیرے فضل کا، تیرے لہو کا خدا جو تو نے صلیب پر بہایا میرے یسوع۔ میں تیرا شکر کرتا ہوں ہالےلویا ہالےلویا ہالےلویا۔ مجھے معاف کر میرے خدا، ہالےلویا، مجھے تیری ضرورت ہے، مجھے لیڈ کر، مجھے گائیڈ کر میرے خدا ہالےلویا۔ مجھے تیرے لہو کی ضرورت ہے، مجھے تیری گائیڈنس کی ضرورت ہے میرے یسوع ہالےلویا ہالےلویا ہالےلویا۔ آج تو خدا اپنے میری مدد کر خدا ہالےلویا، میں اپنے دھیان کو تیرے طرف لگاتا ہوں، اپنے خیالوں کو، اپنی سوچوں کو تیری طرف لگاتا ہوں میرے یسوع ہالےلویا ہالےلویا ہالےلویا۔ میں تیرا شکر کرتا ہوں، تیرا شکر کرتا ہوں میرے یسوع ہالےلویا۔
ساری پرستش تیرے لیے کرتے ہیں خدا. اور یہ ساری گلوری اور یہ ساری آنر خدا یہ تیری ہے میرے یسوع. Hallelujah, Jesus.
میں تیرے قدوس بس آتا ہے یہ خیال یہ صبح کے ہے تو پاک ہے سجدوں پہ سجدے کروں یہ صبح کے ہے تو پاک ہے سجدوں پہ سجدے کروں تیری حضوری میں جھکتا رہوں تیری حضوری میں جھکتا رہوں سجدوں پہ سجدے کروں سجدوں پہ سجدے کروں آسمان تک تیرا دھرتی ہے چوکی تیری آسمان تک تیرا دھرتی ہے چوکی تیری بدلا نہ بدلے کبھی ایسی ہے ہستی تیری بدلا نہ بدلے کبھی ایسی ہے ہستی تیری پاک ہے تو پاک ہے سجدوں پہ سجدے کروں یسوع پاک ہے تو پاک ہے سجدوں پہ سجدے کروں تیری حضوری میں جھکتا رہوں تیری حضوری میں جھکتا رہوں سجدوں پہ سجدے کروں سجدوں پہ سجدے کروں حکمت کا منبع ہے تو پیاری کا دریا ہے تو حکمت کا منبع ہے تو پیاری کا دریا ہے تو رحمت کا چشمہ بھی تو طوفان میں ساحل بھی تو رحمت کا چشمہ بھی تو طوفان میں ساحل بھی تو یسوع پاک ہے تو پاک ہے سجدوں پہ سجدے کروں یسوع پاک ہے تو پاک ہے سجدوں پہ سجدے کروں تیری حضوری میں جھکتا رہوں تیری حضوری میں جھکتا رہوں سجدوں پہ سجدے This is my
Thank you, Jesus. Hallelujah. खुदा तेरा शुक्र. Praise the Lord. Hallelujah. मसीह यीशु के नाम में आप सबको सलाम. खुदा का शुक्रिया अदा करते हैं इस मुबारक वक्त के लिए जो मुझे सुनते देखते हैं. मेरा दिल शुक्रगुजारी से भरा है आप सब के लिए और खुदावंद की इस बड़ी मेहरबानी के लिए जो उसने हम पे की है कि एक बार फिर उसने हमें मौका दिया है कि हम उसकी पाक हजूरी में मेरे अजीज़ों आएँ और आज इस बरकत को हासिल करें जो खुदा ने अपने कलाम के वसीले हमारे लिए रखी है. आइए आगे बढ़ने से पहले हम दुआ करते हैं, खुदा उनका शुक्रिया अदा करते हैं. हालेलुया. कदूस मेहरबान बाप आसमानी, हम दिल की गहराइयों से तेरे शुक्रगुजार हैं इस कीमती और मुबारक वक्त के लिए जो तूने हमें दिया. हम दिल की गहराइयों से तेरे शुक्रगुजार हैं खुदा तेरी सारी मेहरबानियों के लिए और इस प्यारे वक्त के लिए. मैं अपने आप को, अपने घराना को, अपने साथी को, इन तमाम अजीज़ों को तेरे सामने पेश करता हूँ. खुदा हम सबको एक ही रूह में बांध ताकि हमारा ध्यान तेरी तरफ लग जाए और हम तेरी हजूरी में बड़ी बरकत पाएँ. खुदा हम तेरा रूल कुद्दस हमें कंट्रोल में ले ले. खुदा हम तुझे वेलकम करते हैं, हम तुझे मौका देते हैं, हम चाहते हैं तू आए और हमें लीड करे, अपने कलाम के वसीला हमें ब्लेस करे. हालेलुया, हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. खुदावंद हम तुझे ऑनर करते हैं, तेरे कलाम के लिए तेरे शुक्रगुजार हैं. इस मुबारक वक्त में तो हमको लीड कर, हमें डायरेक्शन दे ताकि हम तुझ में और बढ़ें और तरक्की करें. बड़ी बरकत दे यीशु के नाम में, आमीन. सर को उठाते हैं मेरे अजीज़ों. हम कलाम मुकद्दस में से आज अपनी रहनुमाई के लिए खुदा के कलाम में से चंद बातें सीखते हैं कि हमारा खुदा के साथ क्या रिश्ता है. जैसे कि आप सब जानते हैं खुदा ने हमको मुख्तलिफ टाइटल्स के साथ बुलाया. इब्राहिम खुदा का दोस्त कहलाया. यीशु मसीह के अपने शागिर्द उसके दोस्त थे. यीशु मसीह ने कहा बल्कि कि मैंने तुम्हें दोस्त कहा है कि नौकर नहीं जानता कि उसका मालिक क्या करता है, मगर मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूँ, इसलिए मैंने तुम्हें दोस्त कहा है. तो ये भी एक रिश्ता है. फिर हम खुदा को बाप कहकर पुकारते हैं. और आज इससे पहले वाली इबादत में हम सीख रहे थे कि हमें खुदा के पास आने के लिए, खुदा की प्रेजेंस में रहने के लिए किस कदर ज़्यादा दुआ करने की ज़रूरत है. और बाइबल मुकद्दस के अंदर ख़ास तौर पर यीशु मसीह ने दुआ के ताल्लुक से जब सिखाया तो कहा कि तुम मुझे बाप कहकर दुआ करो. मैं चाहता हूँ मेरे साथ कलाम मुकद्दस में आएँ. 1 पीटर चैप्टर 1, पतरस रसूल का पहला ख़त, उसका पहला बाब. हो खुदावंद तेरा शुक्र हो. प्रेज द लॉर्ड. और उसकी 13वीं आयत से मैं पढ़ूंगा. पतरस रसूल का पहला ख़त, उसका पहला बाब और उसकी 13वीं आयत में लिखा है, इस वास्ते अपनी अकल की कमर बांध कर और होशियार होकर उस फजल की कामल उम्मीद रखो जो यीशु मसीह के ज़हूर के वक्त तुम पर होने वाला है. और फरमंबरदार फर्जंद होकर अपनी जहालत के ज़माना की पुरानी ख्वाहिशों के ताबे ना बनो, बल्कि जिस तरह तुम्हारा बुलाने वाला पाक है उसी तरह तुम भी अपने सारे चाल चलन में पाक बनो, क्योंकि लिखा है कि पाक हो इसलिए कि मैं पाक हूं. और जब तुम बाप कहकर उससे दुआ करते हो जो हर एक के काम के मुआफिक बगैर तरफदारी के इंसाफ करता है, तो अपनी मुसाफरत का ज़माना खौफ के साथ गुजारो, क्योंकि तुम जानते हो तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादा से चला आता था उससे तुम्हारी खलासी फ़ानी चीज़ों यानी सोने चांदी के ज़रिया से नहीं हुई, बल्कि एक बेऐब और बेदाग बर्रे यानी यीशु यानी मसीह के बेशकीमत खून से. तो यहाँ पर 17वीं आयत में रसूल ख़ास तौर पर खुदा की रूह की हदायत से लिखते हैं, और जबकि तुम बाप कहकर उससे दुआ करते हो. तो जब हम बाप कहकर खुदा से दुआ करते हैं तो फिर ये टाइटल जो हम खुदा को दुआ में देते हैं ये हमारे ऊपर एक जिम्मेदारी को डाल देता है, और वो जिम्मेदारी है पाक बनने की. वो जिम्मेदारी है खुदा के साथ चलते हुए मुसाफरत का ज़माना बहुत खौफ से गुजारने की. क्यों? क्योंकि कलाम कहता है कि जो हमारा निकम्मा चाल चलन है जो बाप दादा से चला आता था उससे हमारी खलासी जो है वो फ़ानी चीज़ों यानी सोने चांदी से नहीं हुई, बल्कि यीशु मसीह के बेअब बर्रे
यीशु मसीह के खून, बेशकीमत खून से, जो कि बेऐब और बेदाग बन रहा है। तो मेरे अजीजों, यहाँ से हमें डायरेक्शन मिलती है कि जब हम दुआ करना चाहते हैं, और रसूल ने खास 17वीं आयत में ये कहा कि तुम बाप कहकर उससे दुआ करते हो। तो जब खुदा हमारा बाप है और हम उसके बेटे बेटियां हैं, या हम एक सेंस में जाकर उसके बेटे हैं, और ये एक बहुत बड़ी बरकत है जो खुदा ने हमें दी है, क्योंकि जब उसने हमें अपने बेटे बेटियां बनाया तो इसका मतलब है कि उसने हमें आसमानी नेमतों से आसूदा कर दिया। उसने अपनी बरकतें हमारे लिए रखी, जिनको हम मिरास के तौर पर हासिल करते हैं, ना कि अर्निंग के तौर पर, ना कि मजदूरी के तौर पर, ताकि हम खुदा से जो चाहें वो मांग सकें। लेकिन आज मैं जो अब बात आपके साथ शेयर करना चाहता हूं वो इससे थोड़ा सा आगे है। अगर हम जॉन के अंदर आए, जॉन चैप्टर 8 के अंदर आए, तो वहां पर कुछ आयात हैं जिनको हम पढ़ते हैं। जॉन चैप्टर 8 के अंदर जी 31 वर्ष में लिखा है, बस यीशु ने उन यहूदियों से कहा जिन्होंने उसका यकीन किया था, अगर तुम मेरे कलाम पर कायम रहोगे तो हकीकत में मेरे शागिर्द ठहरोगे। मेरे कलाम पर अगर कायम रहोगे और सच्चाई से वाकिफ होगे, और सच्चाई तुमको आजाद करेगी। उन्होंने उससे जवाब दिया, हम तो अब्राहम की नस्ल से हैं और कभी किसी की गुलामी में नहीं रहे। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि सच्चाई से वाकिफ, सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी। तो उन्होंने कहा कि हम तो भाई पहले ही आजाद हैं, हमें कौन सी आजादी देने आ गए हो। यीशु मसीह ने कहा कि और कभी किसी की गुलामी में नहीं रहे, तू क्यों कर कहता है तुम आजाद किए जाओगे। यीशु ने उन्हें जवाब दिया, मैं तुमसे सच कहता हूं, जो कोई गुनाह करता है गुनाह का गुलाम है, और गुलाम अब तक घर में नहीं रहता बल्कि बेटा अब तक रहता है। तो यहां पर हमें एक और डायमेंशन मिलती है, सिम्मत मिलती है रिलेशन की, कि बेटा है या कोई गुलाम है। जो गुलाम है वो गुनाह का गुलाम है। इसका मतलब है गुनाह की गुलामी उसके बेटे होने को हिट करती है, कि इधर वे या तो हम गुलाम है या हम बेटे हैं। और लिखा है, पास अगर बेटा तुम्हें आजाद करेगा तो तुम वाकई आजाद होगे। मैं जानता हूं तुम अब्राहम की नस्ल से हो। यीशु मसीह ने कहा, मैं जानता हूं तुम अब्राहम की नस्ल से, क्योंकि यहूदी हो ना, तो भी मेरे कत्ल की कोशिश में हो, क्योंकि मेरा कलाम तुम्हारे दिल में जगह नहीं पाता। रीजन यह है कि मेरा कलाम तुम्हारे दिल में जगह नहीं पाता। मैंने जो अपने बाप के यहां देखा वो कहता हूं, और तुमने जो अपने बाप से सुना वो करते हो। मैंने जो अपने बाप के यहां देखा वो कहता हूं, और तुमने जो अपने बाप से सुना वो करते हो। उन्होंने जवाब में उससे कहा, हमारा बाप तो अब्राहम है। यीशु ने उनसे कहा, अगर तुम अब्राहम के फर्जंद होते तो अब्राहम कैसे काम करते, लेकिन अब तुम मुझ जैसे शख्स के कत्ल की कोशिश में हो, जिसने तुमको वही बात, हक बात बताई जो खुदा से सुनी। अब्राहम ने तो ये नहीं किया था, तुम अपने बाप कैसे काम करते हो। उन्होंने उससे कहा, हम हराम से पैदा नहीं हुए, हमारा एक बाप है, यानी खुदा। पहले उन्होंने कहा हम इब्राहिम से हैं, अब उन्होंने उससे भी एक अगली डिग्री ले ली कि हम तो खुदा से हैं, खुदा के बेटे हैं। क्योंकि उनको ये सिखाया गया था कि तुम खुदा के फर्जंद हो। अगर आप जाएं ड्यूटरोनॉमी चैप्टर 4 के अंदर, तो वहां पर 14 बाब की पहली आयत में खुदा ने कहा कि तुम खुदा के फर्जंद हो। उनको ये बात बताई गई थी कि तुम खुदा के बेटे बेटियां हो। और लिखा है 42 वर्ष में लिखा है, यीशु ने उनसे कहा, अगर खुदा तुम्हारा बाप होता तो तुम मुझसे मोहब्बत रखते, इसलिए कि मैं खुदा से निकला और आया हूं, क्योंकि मैं आपसे नहीं आया बल्कि उसी ने मुझे भेजा। तो खुदावंद उनको बता रहे हैं कि अगर तुम खुदा के फर्जंद हो तो फिर तुम कलाम को भी प्यार करोगे, इज्जत करोगे। और फिर आगे लिखा है 43rd वर्ष में, तुम मेरी बातें क्यों नहीं समझते, इसलिए कि मेरा कलाम सुन नहीं सकते। तुम अपने बाप अबलीस से हो और अपने बाप की ख्वाहिशों को पूरा करना चाहते हो। वो शुरू ही से खूनी है और सच्चाई पर कायम नहीं रहा, क्योंकि उसमें सच्चाई है नहीं। जब वो झूठ बोलता है तो अपनी ही सी कहता है, क्योंकि वो झूठा है, बल्कि झूठ का बाप है।
لیکن میں جو تم سے بولتا ہوں اسی لیے تم میرا یقین نہیں کرتے۔ اب وہ خدا کی طرف کو بڑھتے چلے جا رہے ہیں، خداوند ان کو اور نیچے لیتا جا رہا ہے۔ پہلے انہوں نے اپنے آپ کو ابراہیم کی نسل کہا، یسوع مسیح نے کہا تم تو غلام ہو، کیونکہ جو کوئی گناہ کرتا ہے وہ گناہ کا غلام ہے۔ انہوں نے کہا ہم تو کبھی غلامی نہیں کی۔ اچھا، غلامی نہیں کی ہے تو پھر گناہ کیسے کرتے ہو؟ پھر کلام تمہارے دلوں میں جگہ کیوں نہیں پا رہا؟ پھر اگلی دفعہ انہوں نے کہا تو ہم تو خدا ہمارا باپ ہے۔ یسوع مسیح نے کہا اگر خدا تمہارا باپ ہے تو پھر تم مجھے کیوں نہیں قبول کرتے؟ یسوع مسیح نے کہا تم اپنے باپ کے سے کام کرتے ہو اور تمہارا باپ ابلیس ہے، کیونکہ وہ شروع سے ہی جھوٹا ہے۔ جب وہ جھوٹ بولتا ہے تو اپنی ہی سے کہتا ہے، وہ خونی ہے اور اس میں سچائی نہیں۔ اس لیے میرے عزیزو، اس کا مطلب ہے کہ زمین پر رہتے ہوئے انسان اپنے آپ کو کچھ بھی سوچے، روحانی اعتبار سے میں بات کرتا ہوں، اس کو ایک لائن تو چننی ہی پڑتی ہے، یا تو وہ خدا کا فرزند ہے یا وہ ابلیس کا فرزند ہے۔ اب جو خدا کے فرزند ہیں یا خدا کے بیٹے بیٹیاں ہیں وہ خدا سے دعا بھی کرتے ہیں، اور جو خدا کے بیٹے بیٹیاں ہیں ان کو ڈیفرنٹ ٹائٹلز ملے ہیں، جیسے ابلیس کے فرزندوں کو ڈیفرنٹ ٹائٹل ملے ہیں۔ مثلا کیا ابلیس کے فرزندوں کو ہم اور کیا کہتے ہیں؟ غضب کے فرزند، اور کیا کہتے ہیں؟ نافرمانی کے فرزند، اور کیا کہتے ہیں؟ ہلاکت کے فرزند، اور کیا کہتے ہیں؟ ابلیس کے فرزند، اور دیر آل سکرپچر ہے۔ میں چاند ایک کو پڑھنا چاہتا ہوں، لکھا ہے کہ اور اس جہان کے فرزند، میرے ساتھ متی کی انجیل کے 13ویں باب میں آتے ہیں، میتھیو چیپٹر 13، میتھیو چیپٹر 13 Praise the Lord۔ 37 ورس میں لکھا ہے، اس نے جواب میں کہا اچھے بیج کا بونے والا ابن آدم ہے اور کھیت دنیا ہے، اور اچھا بیج بادشاہی کے فرزند اور کڑوے دانے اس شریر کے فرزند ہیں۔ جو کڑوے دانے ہیں جو جلائے جائیں گے، لکھا جس دشمن نے ان کو بویا وہ ابلیس ہے، اور کٹائی دنیا کا آخر اور کاٹنے والے فرشتے ہیں۔ پس جیسے کڑوے دانے جمع کیے جاتے اور آگ میں جلائے جاتے ہیں، ویسے ہی دنیا کے آخر میں ہوگا۔ ابن آدم اپنے فرشتوں کو بھیجے گا اور وہ سب ٹھوکر کھلانے والی چیزوں اور بدکاروں کو اس کی بادشاہی میں سے جمع کریں گے اور ان کو آگ کی بھٹی میں ڈال دیں گے، وہاں رونا اور دانت پیسنا ہوگا۔ تو یہاں پر ہم نے دیکھا کہ جو ابلیس کے فرزند ہیں ان کو ہم نے شریر کے فرزند بھی پڑھا ہے کہ وہ شریر کے فرزند ہیں، یعنی کہ شرارت کے فرزند ہیں، یعنی کہ وکڈنس کے فرزند ہیں۔ تو یہ بھی ان کو ٹائٹل مل گیا، ابلیس کے فرزند ہوتے ہوئے نافرمانی کے فرزند کہاں لکھا ہے؟ افسیوں 2 باب کے اندر آتے ہیں، افیشین 2 چیپٹر 2 میں، اور اس کی پہلی ورس میں لکھا ہے اور اس نے تمہیں بھی زندہ کیا جب اپنے قصوروں اور گناہوں کے سبب سے مردہ تھے، جن میں تم پیشتر دنیا کی روش پر چلتے اور ہوا کی عملداری کے حاکم یعنی اس روح کی پیروی کرتے تھے جو اب نافرمانی کے فرزندوں میں تاثیر کرتی ہے۔ ایک سپرٹ تھی، پولس کہتے ایفیشنز کو، جس میں سے تم نکلے ہو۔ اب وہ سپرٹ جو ہے وہ نافرمانی کے فرزندوں کے اندر ہے۔ نافرمانی کے فرزند کیا لکھی ہوں میں یہاں پر؟ چلڈرن آف ڈس اوبیڈینس۔ وہ نافرمانی کے فرزند ہیں، اس کا مطلب ہے نافرمانی کی سپرٹ کتابیں ہیں۔ ان میں ہم سب کے سب پہلے جسم کی خواہشوں میں زندگی گزارتے، جسم اور عقل کے ارادے پورے کرتے تھے، اور دوسروں کی مانند طبعی طور پر غضب کے فرزند تھے، چلڈرن آف ریت تھے۔ ابلیس کا فرزند ہونا، شریر کا فرزند ہونا، نافرمانی کا فرزند ہونا، غضب کا فرزند ہونا، ایک گروپ ہے، ایک گروپ کے اندر یہ سب نام آئے ہیں، ایک گروپ کے اندر یہ سارے ٹائٹلز موجود ہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم کوئی 15-20 طرح کے گروپ بنا لیں گے، نہیں، 2 گروپس کے اندر ہم دنیا کو ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں۔ اور ظاہر ہے اس دنیا کو جو شریر جس کے قبضے میں پڑی ہوئی ہے دنیا،
वो शरारत के जरिए कंट्रोल कर रहा है, नाफरमानी की तासीर के जरिए दुनिया को, और इसको दुनिया के फरजंद भी कहा गया, दुनिया के फरजंद। आई जस्ट वांट टू सी दैट। मैंने ओ प्रेज द लॉर्ड जी। लूका 16 बाब में आते हैं, लूक चैप्टर 16। प्रेज द लॉर्ड, खुदा तेरा इस जहान के फरजंद। 16 8वें आयत में लिखा, और मालिक ने बेईमान मुख्तार की तारीफ की। यहां पर इसमें से एक तमसील बताई थी कि एक मालिक ने एक साहूकार को रखा, उसने कहा कि तुम काम करो, लेकिन उसकी शिकायत की गई और फिर मालिक ने कहा मुझे इसका हिसाब दे। उसके कॉन्टेक्स्ट में वर्स 8 में आते हैं, और मालिक ने बेईमान मुख्तार की तारीफ की इसलिए कि उसने होशियारी की थी, क्योंकि इस जहान के फरजंद अपने हम जिन्सों के साथ मुआमलात में नूर के फरजंदों से ज्यादा होशियार है। इस जहान के फरजंद, इसका मतलब है इस जहान के फरजंद होने का भी मतलब यह है कि हम अबलीस के फरजंद हैं, हलाकत के फरजंद हैं, नाफरमानी के फरजंद हैं, गजब के फरजंद हैं, और फिर इसको जस्मानी फरजंद भी कहा गया। तो इसका मतलब हुआ कि ये जो टाइटल्स हैं, जब ये कोई शख्स अपने ऊपर रखता है तो वो खुदा का फरजंद नहीं हो सकता। जब हम खुदा के फरजंद नहीं हैं, एक्चुअल स्पिरिचुअल हालत में जिस्मानी हैं, तो हमारा उसको बाप कहकर दुआ करना कभी भी अवेल नहीं कर सकता। इसका मतलब है कि हम पहली ही स्टेज पर नाकाम होने लगे। क्यों? क्योंकि हमने उस टाइटल जिससे हम खुदा को बाप कहकर पुकारते हैं, और जेम्स भी अपने खत के अंदर गालबन 5वें बाब में कहते हैं कि इसी से हम उसको बाप कहकर दुआ करते हैं, और इसी से हम आदमियों को बद्दुआ देते हैं। इसी जुबान से वो जुबान की बात जहां करते हैं कि इसी से हम दुआ करते हैं बाप कहकर, और इसी से हम आदमियों को बद्दुआ देते हैं। ऐ मेरे भाइयों, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मेरे अजीजों, मैं चाहता हूं इसको जरा पढ़ता हूं मैं। जेम्स के अंदर आए, मेरे दिल में है ये आयत, जेम्स याकूब रसूल का खत, न्यू टेस्टमेंट के अंदर याकूब रसूल का खत, उसका 3रा बाब, प्रेज द लॉर्ड। 7वें में लिखा है, क्योंकि हर किस्म के छुपाए और परिंदे और कीड़े मकोड़े और दरियाई जानवर तो इंसान के काबू में आ सकते हैं और आए भी हैं, मगर जुबान को कोई आदमी काबू में नहीं कर सकता। वो एक बला है जो कभी रुकती ही नहीं, जहर कातिल से भरी हुई है। इसी से हम खुदावंद और बाप की हम्द करते हैं, और इसी से आदमियों को जो खुदा की सूरत पर पैदा हुए बद्दुआ देते हैं। एक ही मुंह से मुबारकबाद और बद्दुआ निकलती है। आए मेरे भाइयों, ऐसा ना होना चाहिए। एक ही मुंह से, इसका मतलब है कि यह पॉसिबल नहीं है कि हम खुदावंद को बाप कहकर उसकी हम्द भी करें। हम खुदावंद और बाप की हम्द करते हैं, यानी जो हमारा खुदावंद है वो हमारा बाप भी है, और उसकी हम हम्द करते हैं। तो यहां तो जुबान के कॉन्टेक्स्ट में, लेकिन मैं रिलेशनशिप के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ रहा हूं कि वो हमारा खुदावंद भी और हमारा बाप भी है जिसकी हम हम्द करते हैं। लेकिन फिर उसी जुबान से अगर हम आदमियों को बद्दुआ देते हैं, तो रसूल कहते हैं, आए मेरे भाइयों, ऐसा ना होना चाहिए, ऐसा नहीं ठीक है। तो मैं बात करता हूं रिलेशनशिप की, कि हमें एक रिश्ते के अंदर खुदावंद ने बांधा है। बुनियादी तौर पर जब हम खुदा को बाप कहते हैं, तो हमें यह मालूम है कि अब हमारा दुनिया से, अब हमारा शरारत से, अब हमारा नाफरमानी से रिश्ता टूट चुका है। रिश्ता टूटने के बाद हम इस चॉइस के अंदर आए। क्यों? क्योंकि दुनिया में तो हम पैदा होके आए थे, दुनियादार तो हम पहले ही थे। लेकिन जॉन चैप्टर 1 उसकी वर्स 12 में लिखा है, वो अपनों के घर है और उसके अपनों ने उसे कबूल ना किया, मगर जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फरजंद बनने का हक बख्शा। आइए मेरे साथ जॉन चैप्टर 1 के अंदर आइए। प्रेज द लॉर्ड।
10वें आयत में लिखा वो दुनिया में था और दुनिया उसके वसीला से पैदा हुई और दुनिया ने उसे ना पहचाना। प्रेज द लॉर्ड। वो अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे कबूल ना किया, लेकिन जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा, यानी उन्हें जो उसके नाम पर ईमान लाते हैं, उन्हें जो उसके नाम पर ईमान लाते हैं। फिर गैलेशियंस के अंदर भी चैप्टर 3 के अंदर हम एक आयत पढ़ते हैं, मेरे साथ निकालिए जरा, पौलुस रसूल का खत गलतियों के नाम जी। लिखा है गैलेशियन चैप्टर 3 वर्स 26, क्योंकि तुम सब उस ईमान के वसीला से जो मसीह यीशु में है खुदा के फर्जंद हो, खुदा के फर्जंद हो। और तुम सब जितनों ने मसीह में शामिल होने का बपतिस्मा लिया, मसीह को पहन लिया। और आगे लिखा है ना कोई यहूदी रहा, ना यूनानी, ना कोई गुलाम, ना आजाद, ना कोई मर्द, ना कोई औरत, क्योंकि तुम सब मसीह यीशु में एक हो। और अब हम जरा आगे आते हैं वर्स 5 के अंदर लिखा है, 4 पढ़ना होगा। लेकिन जब वक्त पूरा हो गया तो खुदा ने अपने बेटे को भेजा जो औरत से पैदा हुआ और शरीयत के मातहत पैदा हुआ, ताकि शरीयत के मातहतों को मोल लेकर छुड़ा ले और हमको लेपालिक होने का दर्जा मिले। और लिखा, और चूंकि तुम बेटे हो इसलिए खुदा ने अपने बेटे का रूह, जिसको हम रूल कुद्स कहते हैं, कलाम यहां कहता खुदा ने अपने बेटे का रूह, इसीलिए जॉन ने कहा मैं तो तुम्हें गुनाहों की माफी के लिए, तौबा के लिए पानी से बपतिस्मा देता हूं, लेकिन जो मेरे बाद आता वो मुझसे जोरावर है, वो तुम्हें आग और रूह से बपतिस्मा देगा। यानी कि यीशु मसीह तुम्हें आग और रूह से बपतिस्मा देगा। और आगे लिखा है, और चूंकि तुम बेटे हो इसलिए खुदा ने अपने बेटे का रूह हमारे दिलों में भेजा, जो वो रूह है जो अब्बा यानी बाप कहकर पुकारता है, जो अब्बा यानी कि ऐबा यानी ऐ बाप कहकर पुकारता है। बस अब तू गुलाम नहीं, किसका गुलाम नहीं? गुनाह का गुलाम नहीं, बल्कि बेटा है। और जब बेटा हुआ तो खुदा के वसीला से वारिस भी हुआ। फिर हम एयर भी हैं, क्योंकि हम खुदा को बाप कहते हैं। लेकिन खुदा को बाप कहते हुए हमें ये खुदा को बाप कहने वाला ग्रुप तो अभी यीशु मसीह ने फेस किया जॉन चैप्टर 8 के अंदर। उन्होंने भी तो यही से शुरू किया था कि हम इब्राहिम के फर्जंद हैं, फिर उन्होंने कहा हम तो खुदा के फर्जंद हैं। यीशु मसीह ने कहा तुम काम तो अपने बाप इब्लीस जैसे कर रहे हो, तो जिसके से काम करते हो उसी के फर्जंद हुए ना। क्योंकि अगर तुम खुदा के फर्जंद होते तो मेरा कलाम तुम्हारे दिल में जगह पाता, तो मेरे कलाम को कबूल करते, क्योंकि जो मैंने देखा है मैं वो कहता हूं, लेकिन तुमने जो सुना है अपने बाप से इब्लीस से वो करते हो। इसका मतलब है इब्लीस भी सुनाता है, इब्लीस भी गुमराही की तालीम देता है, और इब्लीस के बातों पर भी लोग ध्यान करते हैं और फिर नाफरमानी के फर्जंद बन जाते हैं। लेकिन मेरे अजीजों, मैंने आपको जब कहा कि हम खुदा के फर्जंद हैं, तो इसकी जो जिम्मेदारी है, इसकी जो खिदमत है, जो इसका काम है, वो उन टाइटल्स के अंदर छुपा हुआ है जो इस नाम के साथ जुड़े हैं। मैं समझता हूं खुदा के फर्जंद होना एक बहुत बड़ी बात है, खुदा का फर्जंद या बेटा या बेटी होना बहुत बड़ी बात है। लेकिन खुदा ने एक बड़ी मेहर हम पर की कि उसने कई और नामों से भी हमको पुकारा। उसने हमको नूर के फर्जंद भी कहा, उसने हमें दिन के फर्जंद भी कहा, उसने हमें फरमंबरदारी के फर्जंद भी कहा, उसने हमें क़यामत के फर्जंद भी कहा। रेजरेक्शन, व्हाट अमेजिंग वर्ड इट इज। हम अपॉइंटेड है रेजरेक्शन के लिए। जी मेरे साथ निकालिए जरा खुदा के कलाम में से लूक चैप्टर 20, लूका की इंजील का 20वां बाब। खुदा तेरा शुक्र। यहां पर एक वाक्य है जो कि सदूकियों ने सवाल यीशु मसीह से पूछा,
اور اس کی 28ویں آیت سے میں پڑھوں گا، بلکہ 27ویں سے. پھر صدوقی جو کہتے ہیں قیامت ہے ہی نہیں، ان میں سے بعض نے اس کے پاس آ کر یہ سوال کیا، یعنی یسوع مسیح سے، اے استاد، موسیٰ نے ہمارے لیے لکھا کہ اگر کسی کا بیاہ ہوا بھائی مر جائے، بے اولاد مر جائے، تو اس کا بھائی اس کی بیوی کو کر لے اور اپنے بھائی کے لیے نسل پیدا کرے. چنانچہ 7 بھائی تھے، پہلے نے بیوی کی اور بے اولاد مر گیا، پھر دوسرے نے اسے لیا، پھر تیسرے نے. اس طرح وہ 7 بے اولاد مر گئے، آخر کو وہ عورت بھی مر گئی. پس قیامت میں وہ عورت ان میں سے کس کی بیوی ہوگی؟ کیونکہ وہ 7 کی بیوی بنی تھی. یسوع نے ان سے کہا، اس جہان کے فرزندوں میں تو بیاہ شادی ہوتی ہے، لیکن جو لوگ اس لائق ٹھہریں گے کہ اس جہان کو حاصل کریں اور مردوں میں سے جی اٹھیں، ان میں بیاہ شادی نہ ہوگی. جو لوگ اس لائق ٹھہریں گے، اس کا مطلب ہے یہ لائق لوگوں کے لیے ہے. ہمیں لائق ٹھہرنا ہوگا کہ اس جہان کو حاصل کریں اور مردوں میں سے جی اٹھیں، ان میں بیاہ شادی نہ ہوگی، کیونکہ وہ پھر مرنے کے بھی نہیں، اس لیے کہ فرشتوں کے برابر ہوں گے اور قیامت کے فرزند ہو کر خدا کے بھی فرزند ہوں گے. قیامت کے فرزند ہو کر، کیا لکھا ہوا ہے؟ چلڈرن آف ریزوریکشن. ہم چلڈرن آف گاڈ ہیں اینڈ چلڈرن آف ریزوریکشن ہیں. چلڈرن آف گاڈ اینڈ چلڈرن آف ریزوریکشن. وی آر بینگ چلڈرن آف ریزوریکشن. جیسے ہر برا ٹائٹل ابلیس کے فرزند کے لیے، ایسے ہی ہر برکت کا ٹائٹل خدا کے فرزند کے لیے. صرف یہی نہیں کہ ہم خدا کے بیٹے ہو گئے، وہ بہت بڑی بات ہے. خدا نے اور کئی خوبصورت ناموں سے ہمیں پکارا. ہم بیٹے ہی قیامت کے ہیں، یعنی کہ جی اٹھنے کے بیٹے ہیں. ہم جی اٹھنے کے لیے مقرر ہوئے ہیں، ہم جی اٹھنے والے لوگ ہیں. اور خدا نے ہمیں چلڈرن آف ریزوریکشن کہا. اور پھر اس کے بعد کہتا ہے، being children of resurrection we are the children of God. ہم خدا کے فرزند ہیں. تو یہ خدا نے ہم کو ٹائٹلز دیے ہیں نئے عہد کے اندر. پھر ہمیں اس نے سلامتی کے فرزند کہا ہے. ہم سلامتی کے فرزند ہیں، ہم چلڈرن آف پیس ہیں. میں چاہتا ہوں اس کو بھی پڑھتے ہیں. لوک چیپٹر 10 کے اندر ورس 6 کے اندر آتے ہیں. پریز دی لارڈ. اور اس کی 5 میں لکھا ہے، اور جس گھر میں داخل ہو پہلے کہو اس گھر کی سلامتی ہو. جس گھر میں داخل ہو، خدا کے لوگوں کے گھر جانے کا طریقہ کیا ہے؟ جس گھر میں داخل ہو پہلے کہو اس گھر کی سلامتی ہو. اور اگر وہاں کوئی سلامتی کا فرزند ہوگا، کون؟ سن آف پیس ہوگا. ریئلی ہم تو کئی دفعہ سلامتی کے لیے ترستے ہیں. ہم تو ہیں ہی سلامتی کے فرزند. We are born in peace. We are born for peace. سلامتی کے لیے. اور اگر وہاں کوئی سلامتی کا فرزند ہوگا تو تمہارا سلام اس پر ٹھہرے گا، نہیں تو تم پر لوٹ آئے گا. آپ نہ گھبرائیں کہ یہاں کو خدا کا فرزند ہے کہ نہیں، خدا کا بیٹا یا بیٹی یہاں ہے کہ نہیں، جس نے یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ قبول کیا ہے کہ نہیں. ڈونٹ وری، بلیس دیٹ ہاؤس. خدا مجھے اس گھر کی سلامتی ہو. اب وہ سلامتی بندہ ڈھونڈے گی. سلامتی کا فرزند ہے، اوکے، نہیں ہے، واپس سلامتی بھیجنے والے پر سلامتی آ گئی. اس کا مطلب ہے کہ اگر ہم غضب کے فرزندوں کو سلامتی کی بھی دعا دیتے ہیں، اٹ وونٹ ورک فار دیم. کئی دفعہ ہم سوچتے ہیں ہمارا بھلا کیوں نہیں ہو رہا. کلام کہتا ہے شریر کا کبھی بھلا نہیں ہوگا. کیوں؟ کیونکہ اس نے شرارت کو چھوڑا نہیں. جب اس کو کلام ملا تو وہ کلام پر ایمان نہیں لایا. لوگوں کی سلامتی بھی ہماری سلامتی بن جاتی ہے. جب لوگ ہمیں برکت دیتے ہیں، ہم برکت کے ریسیپینٹ ہیں، برکت کو قبول کرنے والے لوگ ہیں. کئی دفعہ ہم لوگوں کو فورس کرتے ہیں، آپ مجھے برکت دیں. جیسے عیساؤ اپنے باپ اسحاق کو فورس کر رہا تھا، مجھے برکت دے. برکت تو لینے کے قابل ہونا پڑے گا نا. جب ہم خداوند کی برکت کو حاصل کرنے کے قابل ہیں اور ہم سلامتی کے فرزند ہیں، لکھا ہے سلامتی ہمارے اوپر آ کے ٹھہر جائے گی. کئی دفعہ میں نے دیکھا لوگ اپنے بزرگوں کو کہتے ہیں، آپ میرے لیے دعا نہیں کرتے نا، آپ میرے لیے دعا نہیں کرتے نا، اس لیے یہ بجائے،
इसीलिए मेरी तरक्की नहीं हो रही ना, आप मेरे लिए दुआ ही नहीं करते। रियली सिर्फ दुआ करने वाले के हाथ में सब कुछ है? नहीं, सब कुछ उसके हाथ में नहीं है। बरकत लेने वाले के हाथ में भी बहुत कुछ है। क्या आपने राइट डिसीजन लिया था कि आप तारीकी से निकलकर नूर में आ जाएं और अब नूर के फर्जंदों की तरह चलें? जब हम नूर के फर्जंदों की तरह चलेंगे, किसी भी शख्स की सलामती आप पर आन ठहरेगी और खुदावंद आपको बरकत देगा। और मैं चाहता हूं जरा मेरे साथ सेकंड थेसलोनियन में आइए, फर्स्ट थेसलोनियन पहला थेसलुनीकियों का खत, उसका 5वां बाब। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। पांचवें बाब की पहली आयत से पढ़ूंगा मैं। मगर है भाइयों, इसकी कुछ हाजत नहीं कि वक्तों और मौकों की बाबत तुमको कुछ लिखा जाए, इस वास्ते कि तुम आप खूब जानते हो कि खुदा का दिन इस तरह आने वाला है जिस तरह रात को चोर आता है। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा, जिस घड़ी तुम्हें गुमान भी नहीं होगा बिन आदम आ जाएगा, क्योंकि वो चोर की तरह दिन आएगा। आगे चलते हैं। जिस वक्त लोग कहते होंगे सलामती और अमन है, उस वक्त उन पर इस तरह नागहां हलाकत आएगी जिस तरह हामला को दर्द लगते हैं, और वो हरगिज ना बचेंगे। लेकिन तुम आए भाइयों, तारीकी में नहीं हो कि वो दिन चोर की तरह तुम पर आ पड़े। थेसलुनीकियों की कलीसिया को पौल कहते हैं, तुम्हारे लिए नहीं है चोर की तरह। क्यों? क्योंकि तुम सब नूर के फर्जंद और दिन के फर्जंद हो। हम ना रात के हैं ना तारीकी के हैं। इसका मतलब है अबलीस के फर्जंद तारीकी के फर्जंद हैं, वो अंधेरे के फर्जंद हैं। लेकिन जो खुदा के फर्जंद हैं वो नूर के भी फर्जंद हैं और वो रोशनी के भी फर्जंद हैं, यानी कि दिन के फर्जंद हैं। और लिखा है आगे, बस औरों की तरह सो ना रहें बल्कि जागते और होशियार रहें। और आगे लिखा है, क्योंकि जो सोते हैं रात ही को सोते हैं और जो मतवाले होते हैं रात ही को मतवाले होते हैं। मगर हम जो दिन के हैं, ईमान और मोहब्बत का बख्तर लगाकर, ये जो खुदा के हथियार है ना, वो दिन के फर्जंदों के लिए हैं। ये नहीं है कि कोई भी उठे और दुआ में खुदा के हथियार बांधना शुरू कर दे, जो इफिशियंस चैप्टर 6 की वर्स 10 से स्टार्ट होता है। नहीं, इसका मतलब है इफ्सियों के अंदर भी यही लिखा हुआ है कि हम दिन के फर्जंद हैं। इसलिए तारीकी के बेफल कामों पर मलामत किया करो। तारीकी के अपने काम हैं जिनको आगे चलकर थोड़ा सा हम टच करेंगे, अगर खुदावंद ने मौका दिया। वक्त खुद ऐसे खुदावंद की वेल हुई तो मैं उनमें से कुछ चीजें पढ़ूंगा। लिखा है, मगर हम जो दिन के ईमान और मोहब्बत का बख्तर लगाकर और निजात का खौद पहनकर होशियार, उम्मीद का खौद पहनकर होशियार रहें। क्योंकि खुदा ने हमें गजब के लिए नहीं बल्कि इसलिए मुकर्रर किया कि हम अपने खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से निजात हासिल करें। खुदा का यह प्लान है हमारे लिए। हमको दिन के फर्जंद बनाते वक्त खुदा का यह पर्पस था कि वो हमको निजात दे। इसका मतलब है फिर निजात तो फिर नूर के फर्जंदों के लिए हुई, दिन के फर्जंदों के लिए हुई, जो होशियारी से चलते हैं, ना कि रात के फर्जंदों के लिए। मैं चाहता हूं जरा रोमन्स के अंदर आते हैं। प्रेज द लॉर्ड। जी, चैप्टर 13 के अंदर उसकी 8वीं आयत पढ़ूंगा, 8th वर्स, रोमियो 12वां बाब उसकी 8वीं आयत में लिखा है, आपस की मोहब्बत के सिवा किसी चीज में किसी के कर्जदार ना हो। आपस की मोहब्बत के सिवा किसी चीज में, मोहब्बत के सिवा किसी चीज में किसी के कर्जदार ना हो, क्योंकि जो दूसरे से मोहब्बत रखता है उसने शरीयत पर अमल किया। क्योंकि ये बातें कि ज़ना ना कर, खून ना कर, चोरी ना कर, लालच ना कर, और इनके सिवा और जो कोई हुक्म हो, उन सब का खुलासा इस बात में पाया जाता है कि अपने पड़ोसी से अपनी मानद मोहब्बत रख। मोहब्बत अपने पड़ोसी से बदी नहीं करती। इस वास्ते मोहब्बत शरीयत की तामील है। और वक्त को पहचान कर ऐसा ही करो, यानी कि मोहब्बत करो अपने पड़ोसी से और खुदा से। इसलिए कि अब वो घड़ी आ पहुंची कि तुम नींद से जागो।
क्योंकि जिस वक्त हम ईमान लाए थे उस वक्त की निस्बत अब हमारी निजात नजदीक है। रात बहुत गुजर गई और दिन निकलने वाला है, बस हम तारीकी के कामों को तर्क करके रोशनी के हथियार बांध लें। क्यों? क्योंकि खुदा ने हमको तारीकी से रोशनी में बुला लिया। जब तारीकी के फरजांद थे, तारीकी के कामों में रहते थे। अब ये तो नहीं हो सकता कि हम दिन के फरजांद बन जाएं और रात के काम करें, नूर के फरजांद बन जाएं, तारीकी के काम करें। नो, जब हम दिन के फरजांद हैं तो दिन में हैं, फिर दिन जैसा मिजाज बनाना होगा, दिन की तरह चलना पड़ेगा, दिन को ज़हन में रखना होगा। और आगे लिखा है, बस हम तारीकी के कामों को तर्क करके रोशनी के हथियार बांध लें। तारीकी के कामों को तर्क करके रोशनी के हथियार बांध लें। जैसा दिन को दस्तूर है, शाइस्तगी से चलें, ना कि नाच रंग और नशाबाजी से, न ज़नाकारी और शहवत परस्ती से, न झगड़े और हसद से, बल्कि खुदावंद यीशु मसीह को पहन लो और जिस्म की ख्वाहिशों के लिए तदबीरें ना करो। जो जिस्म की ख्वाहिश है उनको नहीं पूरा करने के लिए दौड़े फिरना, बल्कि उन ख्वाहिशों को, गैलेशियंस के अंदर पॉल कहते हैं, जो मसीह यीशु के हैं, उन्होंने जिस्म को उसकी रगबतों और ख्वाहिशों समेत सलीब पे खींच दिया है। इसलिए उन्होंने एक डिसीजन लिया कि मैं खुदा का बेटा, मैं खुदा की बेटी हूं। जब खुदा का बेटा बन गए, अच्छा, फिर मैं नूर का फर्जंद हूं, फिर मैं दिन का फर्जंद हूं, फिर मैं खुदा का बेटा हूं। इसलिए मेरे अजीजों, जब खुदा ने हमको ये वादे दिए हैं और खुदा ने हमको ये प्लान दिए हैं, तो फिर हमें फरमाबरदारी के साथ अपने वक्त को गुजारना है। हम नाफरमानी के फर्जंद थे, मगर अब हम फरमाबरदार हो गए, अब हम खुदा के कलाम के फरमाबरदार हो गए। लेकिन अगर कोई शख्स यही कहे, मैं तो जी खुदा का बेटा हूं, मैं तो खुदा की बेटी हूं, अच्छा बस, दैट्स ओके, खत्म बात हो गई। नो, देयर आर सो मैनी अदर डायमेंशंस जिनको आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा। आपको अपने कामों से साबित करना पड़ेगा कि आप खुदा के फर्जंद हैं। यीशु मसीह ने उन हमसे बहुत बड़े क्लेम करने वालों को झूठा ठहरा दिया। हमसे बहुत आगे थे, जिनकी ब्लड लाइन इब्राहिम थी, उनको भी यीशु मसीह ने कहा, ना तुम इब्राहिम के हो, ना ही तुम खुदा के फर्जंद हो। क्यों? क्योंकि जितने ब्लड लाइन वाले वो थोड़ी यहूदी हैं जो वादा के फर्जंद हैं, और हम वादा के फर्जंद हैं। इसलिए मेरे अजीजों, जब हम खुदा के पास आते हैं तो खुदा हमको अपने बेटे बेटियां बनाता है, और जब हमको अपने बेटे बेटियां बनाता है तो याद रखें, हम मुकद्दसों के भी बेटे बेटियां ठहरते हैं। कितने लोग हैं जिनको पौल ने अपने बेटे कहा, पौलुस रसूल ने अपने बेटे कहा, जिसने खुद कहा कि मेरी मानद बनो जैसे मैं मसीह की मानद बनता हूं। वो तिमोथियुस को अपना फर्जंद कहता है, वो तीतस को अपना फर्जंद कहता है, वो नीफ्रस को अपना फर्जंद कहता है। देयर आर सो मेनी वर्सेस अराउंड। मैं चाहता हूं चांद एक पढ़ता हूं आपके लिए। ओ प्रेज द लॉर्ड। पहला कुरिन्थियों उसका 4 बाब, 1 Corinthians chapter 4। लेकिन मैं वापस आपको खुदा के बेटों पर लेके आना चाहता हूं, लेकिन ऐसे खुदा ने मेरे दिल में रखा, इस बात को भी मैं साथ ऐड कर दूं। 1 Corinthians chapter 4 वर्स, बल्कि मैं इसकी 14th वर्स पढ़ता हूं जी। मैं तुम्हें शर्मिंदा करने के लिए बातें नहीं लिखता, बल्कि अपने प्यारे फर्जंद जानकर, अपने प्यारे फर्जंद जानकर। किनको? कोरिन्थियंस को खत लिखा जा रहा है। कोरिन्थियंस को पॉल अपने बेटे कह रहा है। कैसे? ईमान की रूह से, ईमान की रूह से वो उसके फर्जंद है। और आगे उसने लिखा भी है, जो ईमान की रूह से मेरा फर्जंद है, तुम्हें नसीहत करता हूं। क्योंकि अगर मसीह में तुम्हारे उस्ताद 10,000 भी होते तो भी तुम्हारे बाप बहुत से नहीं। इसका मतलब है, जब आप खुदा के फर्जंद हैं, नूर के फर्जंद हैं, दिन के फर्जंद हैं, फरमाबरदारी के अंदर हैं, वादा के फर्जंद हैं, क़यामत के फर्जंद हैं, बादशाही के फर्जंद हैं, तो फिर जमीन पर भी खुदा कोई रूहानी बाप आपको देगा और आप किसी के रूहानी फर्जंद बनेंगे। और बनना चाहिए, और बनना चाहिए। कोई हो रूहानी तौर पर आपका बाप, जो आपके लिए दुआ करे, जो आपके लिए डायमेंशन सेट करे,
آپ کو روحانی زندگی میں کیسے آگے بڑھنا ہے. اور یہاں پر پال نے کرنتھینس کو کہا تم میرے بیٹے ہو, تمہارے کتنے بھی استاد ہوں سوکے, لیکن باپ میں ہی ہوں. اور آگے پال کہتے ہیں 16ویں آیت پڑھ رہا ہوں جی, بس میں تمہاری منت کرتا ہوں میری مانند بنو. کیوں؟ کیونکہ بچے باپ جیسے ہوتے ہیں. لوگ بیٹے اپنے باپ کو فالو کرتے ہیں. انہوں نے ریزن بتائی, کیونکہ میں تمہارا باپ بنا ہوں نا, اس لیے میری مانند بنو. اس واسطے میں نے تموتھیوس کو تمہارے پاس بھیجا. تموتھیوس کون ہے؟ وہ خداوند میں میرا پیارا اور دیانتدار فرزند ہے, اور میرے ان طریقوں کو جو مسیح میں ہیں تمہیں یاد دلائے گا. تموتھیوس ایک ایسا میرا بیٹا ہے جو میرے طریقوں کو جان گیا ہے, میرے لائف سٹائل کو, میں جیتا کیسے ہوں وہ مجھے کاپی کرتا ہے. وہ تمہیں بتائے گا پال کیسے جیتا ہے, پال کی زندگی کیا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ میرا فرزند ہے. وہ کیسے فرزند ہے؟ ایمان کی روح سے. کیونکہ تموتھیوس کی ماں کا اور اس کے باپ کا ذکر ہمیں ملتا ہے کہ اس کا باپ یونانی تھا, اس کی ماں یہودی تھی. تموتھیوس کو تو خط لکھتے ہوئے پولس کہتے ہیں میں تیری ماں کو بھی جانتا ہوں, تیری نانی کو بھی جانتا ہوں. اسی کی بات کر رہا ہے پال کہ وہ میرا بیٹا ہے, اور وہ کیا کرے گا؟ تمہیں میرے طریقے بتائے گا. اور اگر کوئی بیٹا اور اس کو اپنے باپ کے طریقے ہی نہ پتا ہو. یہودی کیا تھے؟ ان کو ابراہیم کا طریقہ ہی نہیں پسند تھا. یسوع نے کہا تمہارا باپ تو میرا دن دیکھنے کا مشتاق تھا, اور جب اس نے دیکھا تو وہ خوش ہوا, اور تم مجھے پتھر مارنے کو تیار ہو, تم مجھے قتل کرنے کے لیے تیار ہو. کیا تم ابراہیم کے بیٹے ہو؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو باپ کا دوست ہے بیٹے کو اس کا پتہ ہی نہ ہو؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کلام تو کہتا ہے اپنے اور اپنے باپ کے دوستوں کو ترک نہ کر. تو ابراہیم تو خدا کا دوست تھا, کیسے نہیں پتا تھا یہودیوں کو؟ اس لیے کہ وہ بلڈ کو لے کے بیٹھے ہوئے تھے, اوبیڈینس کو نہیں, کلام کو نہیں. وہ کلام کے علاوہ کچھ کرنا چاہ رہے تھے. اینی وے, میں آگے بڑھتا ہوں. میرے ساتھ نکالیے ذرا تیتس کا خط نکالیں ذرا. ٹائٹس چیپٹر 1. جی, چوتھی آیت میں لکھا ہے, او پریز دی لارڈ. پہلی آیت سے پڑھتا ہوں. پالوس کی طرف سے جو خدا کا بندہ اور یسوع مسیح کا رسول ہے, خدا کے برگزیدوں کے ایمان اور اس حق کی پہچان کے مطابق جو دینداری کے موافق ہے, اس ہمیشہ کی زندگی کی امید پر جس کا وعدہ ازل سے خدا نے کیا, جو جھوٹ نہیں بول سکتا, اور اس نے مناسب وقتوں پر اپنے کلام کو اس پیغام میں ظاہر کیا جو ہمارے منجی خدا کے حکم کے مطابق میرے سپرد ہوا. ایمان کی شرکت کی روح سے سچے فرزند تیتس کے نام. ایمان کی شرکت کے روح سے, اس کا مطلب ہے اگر کسی کا روحانی رشتہ بھائی بھائی کا ہے یا بیٹے اور باپ کا ہے, ان کا ایمان ایک ہوگا. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کسی کو روحانی باپ مانتے اور اس کا ایمان اور ہو, آپ کا کوئی اور ہو. نہیں, ایمان ہی تو ہے جو ہم کو ٹائی اپ کرتا ہے ریلیشن شپ کے اندر, اینڈ دیٹس ویری ویری اسپیشل. اگر آپ کسی کے ایمان کے ساتھ متفق نہیں ہیں, آپ اس کو باپ ہونے کا کبھی درجہ نہیں دیں گے, اور وہ آپ کو اپنا بیٹا کلیم ہی نہیں کر سکے گا, کیونکہ ایمان ہی تو ہے جو ہم ایک دوسرے سے شیئر کرتے ہیں. ایمان ہی تو ہے جس کے وسیلے ہم خدا کو پسند آتے ہیں, اور یہ کلام پر ایمان ہے, یہ سچائی پر ایمان ہے. کسی آدمی پر ایمان نہیں کہ کسی آدمی پر آپ ایمان لیں اور کہیں یہ میرا باپ ہو گیا. نو, وہ تو بت پرستی ہو گئی, وہ تو گناہ ہو گیا. اگر میں کلام سے نکل کر کسی کو اپنا باپ بنا لوں, میرا دل کر رہا تھا آپ کو باپ بنانے کو, نو, کلام ڈیسائیڈ کرے گا وہ اسٹیج پر ہے, اس نے اس طرح آپ کی خدمت کی ہے یا کہ نہیں کی ہے. پھر وہ اونیسمس کو بھی اپنا فرزند کہتے ہیں, اور کہتے ہیں یہ قید کے اندر مجھ سے پیدا ہوا, جس کا فلیمون نے جس کو قید میں رکھا تھا قرض کے لیے. اونیسفرس, جی ایک پیج آگے پلٹیں, اس کو پڑھ لیتے ہیں. پریز دی لارڈ. 10ویں آیت کے اندر لکھا ہے, سو اپنے فرزند اونیسمس کی بابت جو قید کی حالت میں مجھ سے پیدا ہوا تجھ سے التماس کرتا ہوں. پہلے تو وہ کچھ تیرے کام کا نہ تھا, مگر اب تیرے اور میرے دونوں کے کام کا ہے. خود اسی کو
यानी अपने कलेजे के टुकड़े को मैंने तेरे पास भेजा है। पौल कहते हैं उसको मैं अपने ही पास रखना चाहता था ताकि तेरी तरफ से उस कैद में जो खुशखबरी के बायस है मेरी खिदमत करे, लेकिन तेरी मर्जी के बगैर मैंने कुछ करना ना चाहा, ताकि तेरा नेक काम लाचारी से नहीं बल्कि खुशी से हो। क्योंकि उसने उसको कैद कराया था कर्ज की वजह से, इसलिए उसने कहा मैं तुझे बताना चाहता हूं कि पहले ना वो तेरे काम का था ना मेरे काम का था, अब है। और उसको अपने कहता है मैं अपने कलेजे के टुकड़े को तेरे पास भेजता हूं। कलेजे का टुकड़ा तो सगे बच्चों को माएं कहती हैं या बाप कहते हैं। पौल किसको कह रहा है? जो ईमान की रूह से उसके साथ पैदा हुआ, उसके कलाम को कबूल किया और कैद के अंदर उसने पौलुस से कलाम सीखा, और पौल ने उसको रूहानी एतबार से अपने कलेजे का टुकड़ा कहा, और उसने कहा अगर इसने तुझे कुछ देना है मेरे नाम लिख दे, मैं पौलुस तुझे पे कर दूंगा इसका कर्जा, इसको आजाद कर, इसको अब से भाइयों की तरह डील करना। Why don't we read the couple of verses here? Oh, praise the Lord. मैं 15वीं आयत पढ़ता हूं। क्योंकि मुमकिन है कि वो तुझसे इसलिए थोड़ी देर के वास्ते जुदा हुआ हो कि हमेशा तेरे पास रहे, मगर अब से गुलाम की तरह नहीं बल्कि गुलाम से बेहतर होकर, यानी ऐसे भाई की तरह रहे जो जिस्म में भी और खुदावंद में भी मेरा नहायत अजीज हो, और तेरा इससे भी कहीं ज्यादा। बस अगर मुझे शरीक जानता है तो उसे इस तरह कबूल करना जिस तरह मुझे। पौल कहते हैं फिलेमोन इसको ऐसे कबूल करना जैसे मुझे कबूल करना है। That's called relationship. That's called blessing. और अगर उसने तेरा कुछ नुकसान किया है या उस पर तेरा कुछ आता है, उसे मेरे नाम लिख ले। मैं पौलुस अपने हाथ से लिखता हूं, खुद अदा करूंगा, और इसके कहने की कुछ हाजत नहीं कि मेरा कर्ज जो तुझ पर है वो तू खुद है। अरे भाई मैं चाहता हूं मुझे तेरी तरफ से खुदावंद में खुशी हासिल हो, मसीह में मेरे दिल को ताज़ा कर। मैं तेरी फरमाबरदारी का यकीन करके तुझे लिखता हूं, यानी फिलेमोन तो मेरी बात मानेगा, और जानता हूं जो कुछ मैं कहता हूं तो उससे भी ज्यादा करेगा। प्रेज द लॉर्ड। इसके सिवा मेरे लिए ठहरने की जगह तैयार कर, क्योंकि मुझे उम्मीद है कि मैं तुम्हारी दुआओं के वसीला से तुम्हें बख्शा जाऊंगा। आमीन। मेरे अजीजों, ये है स्पिरिचुअल रिलेशनशिप। जब खुदा ने हमको अपने बेटे बनाया, फिर उसने हमें मुकद्दसों के स्पुर्द किया, उनको अपने बेटे जाने, और किसी को ये मुकाम बख्शा कि वो बाप की तरह उन्हें अपने कलेजे का टुकड़ा कहे। हम सिर्फ अपने रिश्तेदारों के अजीज नहीं हैं, हम रूहानियों के भी बड़े अजीज हैं। कई दफा हम उनकी फीलिंग्स को सुनते नहीं हैं। जो बुजुर्ग हमारे लिए दुआएं करते हैं, कभी हम उन्हें पूछते नहीं हैं कि वो हमारे बारे में क्या सोचते हैं। वो तो हमें बहुत प्यार करते हैं उस ईमान की वजह से जिसकी शराकत उनके साथ हमारी है। मैं आपको उन लोगों की लिस्ट बताने से कासिर हूं जिन्होंने मेरे ईमान में मजबूत करने के लिए मेरे लिए बाप का रोल अदा किया। जानते हैं, मैं अक्सर अपने पास्टर का नाम लेता हूँ, पास्टर सरफराज साहब का, और फिर उसके बाद ग्रेजुअली और लोग मेरी ज़िंदगी में खुदा ने दिए जो उस्ताद की तरह मेरी ज़िंदगी में आए। मैं खुदा का बेहद शुक्र करता हूँ उस ईमान के लिए जिसको खुदा ने टाइम आफ्टर टाइम मेरी ज़िंदगी में बढ़ाया। और ये खुदा हर एक की ज़िंदगी के लिए करता है। ये खुदा का इंतज़ाम है कि उसने लोगों को मुकर्रर किया है कि वो नए नौजवानों को रेज करें, उनको खुदा के कलाम से टीच करें ताकि वो एक दर्जे पर पहुंचें। ये एक दौड़ है, ये एक जंग है। ये आप अकेले नहीं दौड़ के जीत जाएंगे कि कोई आपको पूछने वाला ही ना हो। पता चला आप लाइन क्रॉस करके अंधेरे में गए हुए हैं, पता चला आप अंधेरे उधर नूर से निकलकर तारीकी में फिर रहे हैं, पता चला खुदा को बाप कह के दुआ कर रहे हैं, काम सारे अंधेरे के कर रहे हैं, शरारत के फरजंद के, अबलीस के फरजंद के, नाफरमानी के फरजंद के। फिर कोई होगा। खुदा का रूह भी हमें सिखाता है, खुदा का कलाम भी सिखाता है। लास्टली मैं एक वर्स पढ़ूंगा, पहला पत्रस, जहां से हमने शुरू किया था। वापस उस स्क्रिप्चर को पढ़ के मैं बंद करूंगा आज। पहला पत्रस रसूल का पहला खत, उसका पहला बाब। मैं उन सारी बातों को दोबारा से नहीं पढ़ूंगा, बल्कि मैं लास्ट वर्सेस पे जाऊंगा सीधा। ओह प्रेज द लॉर्ड।
18वीं आयत पढ़ने लगा हूं, क्योंकि तुम जानते हो तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादा से चला आता था, उससे तुम्हारी खलासी फानी चीजों यानी सोने चांदी के जरिए से नहीं हुई, बल्कि एक बेऐब और बेदाग बर्रे यानी मसीह के बेशकीमत खून से। उसका इल्म तो बनाए आलम से पेशतर से था इल्म, मगर ज़हूर अखीर ज़माना में तुम्हारे खातिर हुआ कि उसके वसीला से खुदा पर ईमान लाए हो, जिसने उसको मुर्दों में से जलाया और जलाल बख्शा, ताकि तुम्हारा ईमान और उम्मीद खुदा पर हो, क्योंकि तुमने हक की ताबेदारी से अपने दिलों को पाक किया है। हक की ताबेदारी, खुदा के कलाम की ताबेदारी। हक खुदा का कलाम है, सच्चाई खुदा का कलाम है। उसकी ताबेदारी से अपने दिलों को पाक किया, जिससे भाइयों की बेरिया मोहब्बत पैदा हुई। इसलिए दिलो जान से आपस में बहुत मोहब्बत रखो। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि तुम फानी तुखम से नहीं, बल्कि गैर फानी से, खुदा के कलाम के वसीला से, जो जिंदा और कायम है, नए सिरे से पैदा हुए हो। चुनाचे हर बशर घास की मानद है, और उसकी सारी शान व शौकत घास के फूल की मानद। घास तो सूख जाती है और फूल गिर जाता है, लेकिन खुदावंद का कलाम अब तक कायम रहेगा। ये वही खुशखबरी का कलाम है जो तुम्हें सुनाया गया था। बस हर तरह की बदखाही और सारे फ्रेब और रियाकारी और हसद और हर तरह की बदगोई को दूर करके नौजाद बच्चों की मानद खालिस रूहानी दूध के मुश्ताक रहो, यानी खुदा के कलाम के मुश्ताक रहो, ताकि उसके जरिया से निजात हासिल करने के लिए बढ़ते जाओ। आपके पास वक्त हो, 2nd चैप्टर पूरा पढ़िए। There's a great blessing. It's a wonderful stuff here. आपको रहनुमाई देगा हम कैसे नूर में चल सकते हैं, हम कैसे दिन में चल सकते हैं। मेरे अजीजों, shortly I want to tell you, this is the will of God. This is the word of God. अगर हम दिन के हैं, फिर हमें खुदा के कलाम पर चलना है, खुदा के कलाम को अपने दिल में रखना है। इसी से हमारा जन्म हुआ है, इसी से हम जुड़े हैं। फानी तुखम से नहीं, बल्कि खुदा के जिंदा कलाम के जरिए हम पैदा हुए हैं। क्योंकि घास सूख जाती है, फूल कमला जाता है, मगर खुदा का कलाम अब तक कायम रहेगा। और यही वो खुशखबरी का कलाम है जो हमको सुनाया गया, और हमने खुशखबरी के कलाम ही को कबूल किया। बस हर तरह की बदखाही और सारे फ्रेब और रियाकारी को दूर करके नौजाद बच्चों की तरह रूहानी दूध के मुश्ताक रहें। आइए दुआ करते हैं। गॉड ब्लेस यू। हालेलुया। खुदावंद बाप आसमानी, हम तेरे शुक्रगुजार हैं तेरे कलाम की इन जिंदा उमीद सुंदर बातों के लिए, इस मुकद्दस किताब के लिए जिनसे हमें रोशनी मिलती है। तेरी बातों की तशरीह मुझे नूर बख्शती है। तूने फरमाया मेरे लोग अदम मार्फत के सबब से हलाक हुए। खुदा हमें अपने कलाम पर भरोसा करने का फजल दे, और सदा इस कलाम की ताबेदारी में जीने का फजल दे। जब हम तुझे बाप कहते हैं, तो जब हम तेरे बेटे बेटियां हैं, तो फिर हमें नूर के फर्जंदों की तरह, फिर हमें दिन के फर्जंदों की तरह, फिर हमें फरमंबरदार बेटों की तरह, फिर खुदा हमें क़यामत के फर्जंदों की तरह हो खुदा नूर में चलने का फजल दे। हर तरह की तारीकी, हर तरह की खुदावंद बेफल जिंदगी जाती रहे, और हर किस्म का इब्लीस का असर हमारी जिंदगियों से जाता रहे। क्योंकि जब हम तुझे बाप कहकर पुकारते हैं, फिर हमें अपना मुसाफरत का ज़माना बड़े खौफ से गुजारना है, ताकि हमारे बदनों से तुझे जलाल मिले। मेरे लोगों को बड़ी बरकत दे, मेरे बेटे बेटियों को, मेरे भाइयों बहनों को बड़ी बरकत दे खुदा। जिनके लिए मैं बेटा हूँ वो रूहानी बाप सलामत रहें, और जिनके लिए मैं बाप हूँ वो बेटे बेटियाँ सदा सलामत रहें, तुझ में बढ़ते रहें। बड़ी बरकत दे खुदा। जिनके लिए मैं भाई हूँ, मेरे भाइयों को सदा बाबरकत रखना, सदा नूर में चलते रहें। मैं, मेरे बहन भाई सदा नूर में चलते रहें। कभी तारीकी हमारी जिंदगियों में जगह ना पाए, बल्कि हम सदा एक ईमान में तामीर होते जाएं। बड़ी बरकत दे। आज की सारी बरकत का सारा जलाल तुझे देते हैं, यीशु के नाम में, आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सो मच।